Hello dear student, myself Raman Shukla from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear student, in this video we are going to solve exercise of chapter 3rd Geography. Topic is motion of the earth. Firstly, we are going to solve fill in the blanks. First is the earth takes hours to complete one rotation on its axis. So dear student, here we feel 24. तो पूरा जो सेंटेंस होगा हमारा कंप्लीट, द अर्थ टेक्स 24 hours to complete one rotation on its axis. Second is the motion of the earth around the sun is called. Dear student, here we feel revolution. So the complete sentence is the motion of the earth around the sun is called revolution. Third question, on the day of the duration of the day and night is equal. तो इसमें हम फील करेंगे डियर स्टूडेंट इक्विनॉक्स. ऑन द डे ऑफ इक्विनॉक्स द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल. फोर्थ क्वेश्चन इज इन अ लीप ईयर देयर आर डेज. Here we feel dear student 366. So the complete sentence is in a leap year there are 366 days. Fifth question is the shortest day of the year in the southern hemisphere would be. Dear student, here we feel 21st June. So fill in the blanks is completed. Now we are going to solve complete the sentences. In complete the sentences, first sentence is sun is seen to rise from the east and set in the west because earth moves anti-clockwise. Dear student, हमारी जो अर्थ का मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है. एंटी क्लॉकवाइज मीन्स वेस्ट टू ईस्ट. West to east. That wise a sun is seen to rise from the east and set in the west because earth moves anti-clockwise. So this sentence is completed. Now next sentence is as the earth rotates the speed of the motion is constant, as is our movement with it. So, dear student, तो इसमें आगे हम लिखेंगे जो इससे जो सेंटेंस कंप्लीट होगा, दैट इज यू डू नॉट फील द मोशन ऑफ द अर्थ. डियर स्टूडेंट, जो अर्थ रोटेट करती है तो उसका जो स्पीड ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट रहता है. इसके साथ जो हमारा मोमेंट होता है, तो यही कारण होता है कि हमें ये जो है फील नहीं होता है. यू डू नॉट फील द मोशन ऑफ द अर्थ. थर्ड क्वेश्चन इज the earth's axis makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. ये स्टूडेंट, जो हमारा अर्थ का एक्सिस है
वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है अपने ऑर्बिटल प्लेन से। और जब हम ऑर्बिटल पाथ से इसके एंगल की बात करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ 23.5 डिग्री। सो रिमेंबर इट, जब हम इसके ऑर्बिटल पाथ से बात करते हैं तो ये 23.5 डिग्री है। लेकिन अगर हम ऑर्बिटल प्लेन से इसके एंगल की बात करें, दैट इज़ 66.5 डिग्री। तो यहाँ हम आगे लिखेंगे विथ के बाद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। फोर्थ क्वेश्चन, एज द अर्थ रोटेट्स, one part faces the sun and has daylight, while other, तो while के बाद हम लिखेंगे other is in darkness and experiences night. Fifth question, circle of illumination is an imaginary line on the globe that, तो that के बाद हम लिखेंगे divides the day from the night. Question number 6, as the earth orbits around the sun, its axis remains, तो remains के बाद लिखेंगे tilted at 23.5 degree in the orbital path. Tilted at 23.5 degree in the orbital path. तो ये हमारा जो क्वेश्चन 6 है वो अब कंप्लीट हुआ। नाउ 7, the distance between the earth and the sun varies during the revolution as, इसका आंसर है डियर स्टूडेंट, आगे जो लिखेंगे the earth orbits the sun in an oval or elliptical path. The earth orbits the sun in an oval or elliptical path. Here the question is, the longest day in southern hemisphere has longer nights during summers as, ये स्टूडेंट साउदर्न हेमिस्फीयर में जो समर्स हैं, गर्मियाँ हैं, उसमें भी जो नाइट्स है वो लॉन्गर होती हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो वो है सॉरी डियर स्टूडेंट, ये जो 9th क्वेश्चन हमने पढ़ दिया, सबसे पहले हम अर्थ को पढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज 22 दिसंबर एज शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो एच के बाद हम लिखेंगे शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 9th क्वेश्चन जो है, साउदर्न हेमिस्फीयर हैज लॉन्गर नाइट्स ड्यूरिंग समर्स एज, तो एज के बाद हम लिखेंगे लार्ज पार्ट ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम द सन। आई रिपीट इट, large part of southern hemisphere away from the sun. So dear student, here we have completed complete the sentences. Complete the sentences जो हैं वो हमारे complete हुए। Now we are going to solve, answer the following questions in brief. Brief question answers हैं। Our first question is, what causes night and day on earth? अर्थ पे जो डे एंड नाइट्स होते हैं, इनकी कॉजेज क्या है, इनके कारण क्या हैं? और आंसर इज रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ, ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही ब्रीफ आंसर है, इसको हम और बड़ा भी कर सकते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज नाइट एंड डे ऑन अर्थ।
ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ causes डे नाइट एंड डे ऑन अर्थ। दूसरा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, डिफाइन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स को डिफाइन करना है हमें, इक्विनॉक्स क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट द आंसर इज एट द इक्विनॉक्स द सन इज ओवरहेड एट द इक्वेटर। आई रिपीट इट, at the equinox the sun is overhead at the equator। डियर स्टूडेंट जो इक्विनॉक्स होता है, इस दिन जो सूरज होता है सन, वो इक्वेटर के जस्ट एबव होता है। एंड ड्यू टू दिस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज इक्वल, 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट। ये कब होता है? इक्विनॉक्स पे होता है। इक्विनॉक्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट वो हमारे दो होते हैं। एक होता है 21 मार्च को, मतलब 21 मार्च को आप चेक कर सकते हैं, जितना बड़ा दिन होता है उतनी ही बड़ी रात होती है। एंड 23 सितंबर, तो आपका सितंबर आने वाला है, 23 सितंबर को आप चेक कर सकते हैं कि जितना बड़ा दिन होगा उतनी ही बड़ी रात होगी, उसी को बोलते हैं इक्विनॉक्स। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन थर्ड इज वाई आर सीजन कॉज्ड। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है पूछ रहा है हमसे कि जो सीजन्स हैं इसके क्या कारण हैं। आवर आंसर इज द अर्थ्स रेवोल्यूशन काजेज सीजन। डियर स्टूडेंट जो अर्थ का रेवोल्यूशन है वही इसका काजेज है, सीजन का कारण है मौसम। तो इसमें होता क्या है डियर स्टूडेंट, जब हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उस दौरान वो चूँकि टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, इस वजह से जो उसके दोनों हेमिस्फीयर हैं, मतलब आधे हिस्से हैं, तो 6 मंथ तक लगातार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन को फेस करता है और 6 मंथ तक सदर्न हेमिस्फीयर। और जो सूरज की रोशनी का अमाउंट घटता बढ़ता है, मतलब डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ को बात करें हम, तो उसमें हमारा पूरा अर्थ आएगा। और क्योंकि जो पोजीशन है सन की वो मूव कर रही है बिटवीन इक्वेटर टू ट्रॉपिक्स, तो इस वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। मेनली जब जस्ट पर्टिकुलर एरिया पे सूरज की डायरेक्ट रेज पड़ेंगी वहाँ पे गर्मी होगा, और जहाँ पे स्लैंटिंग रेज पड़ेंगी वहाँ पे सर्दी होगा। फॉर एग्जांपल जून के मंथ में हमारा जो लैंड है, हमारी कंट्री है, यहाँ पे डायरेक्ट रेज आप सन आती हैं, तो जून का टेम्परेचर हाई होता है। अभी आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में देखेंगे तो इस टाइम पीरियड में क्या है कि सूरज सदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है आफ्टर 23 सितंबर, तो जो रेज ऑफ सन है वो और भी स्लैंटिंग हो जाती है, मतलब तिरछी किरणें आना शुरू होती हैं, तो इस वजह से हमारे वहाँ सर्दियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। और फिर जैसे ही 21 मार्च के बाद सूरज सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंट्री करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ता है, तो जैसे जैसे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ता है, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो आप देखेंगे गर्मी बढ़ती जाती है। मार्च के बाद अप्रैल ज़्यादा गर्म होता है, अप्रैल के बाद मई उससे गर्म होता है, और सबसे ज़्यादा गर्मी जो है जून मंथ में पड़ती है। फिर आप देखेंगे जब जो है जून के बाद फिर सूरज जो है इक्वेटर की तरफ जाता है, सितंबर तक इक्वेटर पे पहुंच जाता है, और फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर तक वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर चमकता है, मतलब सॉदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो आप देखेंगे उस समय हमारे वहाँ सर्दी पड़ रही होती है, लेकिन डियर स्टूडेंट उसी समय ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। तो ये जो काजेज ऑफ सीजन है वो यहाँ डिस्कस हुए। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट, वो है व्हाट इज हाई टाइड एंड लो टाइड एंड व्हाट काजेज दीज टाइड्स। हाई टाइड क्या है, लो टाइड क्या है, और वो कॉजेज क्या हैं जिनसे ये टाइड्स होते हैं। तो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट, व्हेन द मून इज डायरेक्टली ओवरहेड ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल्स।
डियर स्टूडेंट, जब मून जो होता है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है, मतलब बिल्कुल ऊपर होता है हमारी अर्थ के, तो इसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, मतलब इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है किसकी, मून की, इन ओशंस वाटर टू राइज, तो इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो वाटर लेवल है ओशंस का वो उठ जाता है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, जो सॉलिड चीज़ें हैं उन पे ग्रेविटेशनल पुल तो होता है लेकिन वो उठ नहीं पाती हैं, लेकिन जो लिक्विड होता है वाटर, वो उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऊपर की तरफ उठ जाता है, और यही जो उठा हुआ हिस्सा होता है इसी को बोलते हैं हाई टाइड। क्या बोलते हैं? हाई टाइड। ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल इन ओशंस, वाटर टू राइज इज कॉल्ड हाई टाइड। When water level recedes is called low tide। और डियर स्टूडेंट, जब सूरज जो है दूर चला जाता है, उसकी डायरेक्शन एंगल चेंज हो जाती है, तो जो वाटर लेवल रिसीड्स होता है, कम होता है, इसको हम बोलते हैं लो टाइड। ठीक है, तो हाई टाइड क्या है और लो टाइड क्या है, ये क्लियर हो गया। इसके जो कॉजेज हैं वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, ये भी क्लियर हुआ। इसके अलावा जो रोटेशन है वो भी इसका एक काजेज है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ हैं वो हमारे कंप्लीट हुए। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स। अब हम जो हमारे डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हाउ इज समर सोलिस्टाइस डिफरेंट फ्रॉम विंटर सोलिस्टाइस? सबसे पहले हमको डिफरेंसेस बताने हैं समर सोलिस्टाइस में और विंटर सोलिस्टाइस में। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम दो कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में समर सोलिस्टाइस लिखेंगे और दूसरे में लिखेंगे विंटर सोलिस्टाइस। समर सोलिस्टाइस में पहला पॉइंट डालेंगे, उसमें लिखेंगे इन समर सोलिस्टाइस द सन इज ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो विंटर सोलिस्टाइस में कॉलम है उस पर हम पहला पॉइंट लिखेंगे इन विंटर सोलिस्टाइस द सन इज ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट पॉइंट जो डालेंगे हम समर सोलिस्टाइस में, इसमें लिखेंगे इट इज़ लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो समर सोलिस्टाइस होता है 21 जून हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। थर्ड क्वेश्चन जो है वो द प्लेसेज नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल हैव 24 hours daylight। Dear student, in these days, the places that situated north to the Arctic Circle, they continuously receives 24 hours daylight। और इसी तरह से जो हमारा विंटर सोलिस्टाइस का कॉलम है, इसमें सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे इट इज लॉन्गेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे द प्लेसेज नॉर्थ ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल हैव 24 hours डे लाइट। इट्स क्लियर। इसके बाद जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, डिफाइन डिurnal मोशन ऑफ द अर्थ। हमें अर्थ की जो डिurnal मोशन है इसको डिफाइन करना है। तो इसका आंसर है एज द अर्थ रोटेट्स वन पार्ट फेसेस द सन एंड हैज़ डे लाइट while the opposite side which is away from the sun is in darkness and experiences night. This daily movement of earth is called its diurnal motion। तो स्टूडेंट, जो हमारी अर्थ है वो रोटेट्स करती है, तो उसका वन पार्ट जो है वो सन को फेस करता है, तो वहाँ पे डे लाइट होती है, दिन होता है। बाकी जो अपोजिट साइड होता है वहाँ पे डार्कनेस होती है, रात होता है। तो ये जो डेली मूवमेंट है हमारी अर्थ का, इसी डेली मूवमेंट को कहते हैं ड्यूरिनल मोशन। सो डियर स्टूडेंट, हियर द डिटेल आंसर ऑफ डिटेल आंसर 2 इज डिस्क्राइब। नाउ वी आर गोइंग
to solve how is rotation of Earth different from revolution of Earth and what do these motions cause. तो डियर जो क्वेश्चन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ है इसको हम अपनी अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड आफ्टर दैट वी आल्सो सॉल्व द हॉट्स एंड नाउ द video is completed. Thanks for watching.